کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سکندریہ شہر میں ایک درزی کی دکان تھی۔ اس درزی کا شمار سکندریہ کے ماہر فنکار درزیوں میں ہوتا تھا۔ وہ درزی بڑا ہی ایماندار اور نیک آدمی تھا۔ اس کی دکان پر ایک کاریگر کام سیکھ رہا تھا۔ اس کاریگر کا نام تھا البکان۔ نیا کاریگر نیا تھا مگر اناڑی نہ تھا۔ ان دنوں مشینیں تو ہوتی نہیں تھی، سارا ہنر ہاتھ کا ہوتا تھا۔ یہ نیا کاریگر بھی ہاتھ میں سوئی لے کر ایسے سلیقے سے کپڑوں پر ٹانکے لگاتا کہ لوگ حیرت کرتے۔ اس کے کاڑے ہوئے گل بوٹوں کو دیکھتے تو تعریفی انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ نیا کاریگر سست اور کاہل تو تھا نہیں، البتہ اس کی عادتیں کچھ انوکھی ضرور تھیں۔ کبھی اس کے جی میں آتا تو گھنٹوں دم لیے بغیر سلائی یا کڑھائی کرتا جاتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سوئی دھاگا فرش پر رکھ دیا، اداس صورت پہروں خالی آنکھوں سے خلاؤں میں گھورتا رہتا، کسی سے کچھ نہ کہتا، یوں لگتا جیسے آدم زاد نہیں کوئی پتھر کا بت ہے۔ ایسے موقعوں پر اس کا استاد اور اس کے ساتھی کاریگر دل لگی سے باز نہ آتے، اسے طنز کا نشانہ بناتے، ہنس کر خوب ستاتے، یک زبان ہو کر کہتے کہ ہمارا پیارا البکان تو مفکر بن گیا ہے۔ جمعوں کے روز نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے اور کھا پی کر آرام کرتے، اس وقت البکان زرق برق پوشاک میں سڑکوں پر مارا پھرتا۔ بہت دنوں کی محنت سے اس نے پیسے جمع کر کے ایک شاندار جوڑا تیار کروا رکھا تھا۔ راہ چلتے اگر اس کے ساتھی یا شناسہ مل جاتے تو سلام کرتے تو وہ بڑے شاہانہ انداز میں سر کی ذرا سی جنبش سے ان کے سلام کا جواب دیتا۔ اس کی اس ادا پر لوگ ہنستے تھے۔ خود اس کا استاد اکثر کہتا کہ البکان تمہارے جسم میں تو کسی شہزادے کی روح چھپی ہے۔ البکان اپنے استاد کے اس جملے کا برا ماننے کے بجائے اس پر خوش ہوتا تھا، گویا کہ وہ جو کچھ سن رہا ہے 100% سچ ہے۔ دن گزرتے رہے، البکان اسی طرح اپنے استاد کی دکان پر کام کرتا رہا۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی حرکتیں بعض عجیب و غریب ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو چکا تھا اور طبیعت کا بھی نیک تھا، اس لیے استاد اس کی حرکتوں کو برداشت کرتا رہا اور اس کی باتوں کو ہنسی میں ٹالتا رہا۔ ایک روز اسکندریہ کے سلطان کا بھائی، جس کا نام شہزادہ سلیم تھا، اس علاقے سے گزرا۔ اس نے اپنا ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت جوڑا معمولی سی مرمت کے لیے اسی درزی کی دکان پر بھیجا تھا۔ استاد نے یہ کام البکان کے سپرد کر دیا۔ شام کو جب تمام کاریگر اور خود استاد دکان بند کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تو البکان کے سینے میں ایک ہک سی اٹھی۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور پھر سر میں ایسی سمائی کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اپنے استاد کی دکان پر پہنچا جہاں شہزادہ سلیم کا شاہانہ جوڑا مرمت کے بعد ایک گھونٹی پر ٹنگا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی جوڑے کے سامنے کھڑا، اس کے رنگ، اس کی کڑھائی، اس کے ریشم کی نرمی اور اس پر ٹنگے ہوئے موتیوں اور جواہرات کی چمک دمک، غرض کے ایک ایک بات پر دل ہی دل میں داد دیتا رہا، اور پھر اس کی طبیعت مچلی۔ اس نے وہ جوڑا اپنے بدن پر چڑھا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی ناپ البکان کے تن و توش پر ایک دم ٹھیک پوری آئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ میں سچ مچ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ دکان میں چاروں طرف لگے ہوئے آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے البکان نے خود سے پوچھا۔ استاد بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرے بدن میں کسی شہزادے کی روح چھپی ہوئی ہے۔ دھیرے دھیرے اسے یقین ہو چلا کہ وہ شہزادہ ہے۔ یہ قیمتی جوڑا کسی اور کا نہیں، خود اسی کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ وہ شہزادہ ہے۔ اسے چھوٹے اور معمولی حیثیت کے لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح کی عجیب و غریب باتیں سوچتا وہ دکان سے نکلا، اپنی جمع پونجی اپنی جیبوں میں بھری، اور اس وقت جب پورے شہر پر رات پھیل چکی تھی وہ فصیل کے صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اپنے شاندار جوڑے میں جدھر بھی جاتا لوگ مروب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگتے۔ اس بات پر سب کو حیرانی ہوتی کہ جسم پر پوشاک اتنی قیمتی ہے مگر بیچارہ پیدل مارا پھر رہا ہے۔ لوگ جب اس کا سبب پوچھتے تو وہ گول مول جواب دے کر آگے بڑھ جاتا۔ اس نے سوچا کہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے، سو اس نے سستے داموں میں ایک گھوڑا خرید لیا۔ وہ گھوڑا عمر رسیدہ یعنی بوڑھا تھا مگر فرض شناس اور سنجیدہ تھا۔ اپنے 9 مشق سوار کو چپ چاپ پیٹھ پر لادے چلتا رہا۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار ٹک ٹک کرتا وہ چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گھڑ سوار سے اس کی ملاقات ہوئی۔ گھڑ سوار نے جھک کر البکان کو سلام کیا اور اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں، باتوں میں سفر کٹ جائے گا۔
अलबकान को उस घुड़सवार की शक्लो सूरत और अंदाजो त्वार बहुत पसंद आए, सो उसने ये तजवीज़ मान ली और दोनों घुड़सवार साथ साथ चलने लगे। अजनबी ने उससे बातों बातों में बहुत से सवाल पूछे कि वो कौन है, कहाँ का बाशिंदा है और कहाँ जाने का इरादा रखता है। अलबकान ने बस इतना कहा कि वो एक आली नसब शहजादा है और तफरीहन सैर की गर्ज से निकला है। अजनबी ने अपना नाम उमर बताया और कहा कि उसके चाचा ने बिस्तरे मर्ग पर उसे कुछ हिदायतें दी थी, उन्हीं के मुताबिक वो सफर कर रहा है। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए, साथ चलते, साथ रुकते, साथ खाते पीते। अगले रोज अलबकान ने उमर से कहा कि वो अपने सफर का मकसद बताए। उमर ने जवाब दिया कि वो अपने वालिदैन के बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी परवरिश काहिरा के एक बड़े नवाब ने की थी। अभी कुछ दिन पहले ही उस नवाब पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। लड़ाई घमसान की हुई और वो बुरी तरह जख्मी हो गया और मरने के करीब था। तो उमर पर यह राज खोला कि उमर उसकी हकीकी भाई की औलाद नहीं और ना ही वो उसका चाचा है। उसका बाप एक बादशाह है, यानी उमर का बाप एक बादशाह है, जिसने एक नजूमी के मशवरे पर उसे उस नवाब के पास भेज दिया और नवाब ने उसकी परवरिश बड़े नाजो नाम के साथ की। नवाब ने मालूम नहीं क्यों उमर को उसके बाप का नाम पता नहीं बताया। उसे बस ये हुक्म दिया कि वो उस महीने के चौथे रोज, जो उसकी 22वीं सालगिरह का दिन है, अल शराजा के मकाम तक जाए जो 7 कोस के फासले पर है। जब वो उस मकाम पर पहुंचेगा तो उसे 4 अजनबी मिलेंगे। वो उन अजनबियों को अपने मुंह बोले चाचा का अता किया हुआ खंजर दे देगा और उनसे कहेगा कि मैं वो हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। इस पर अजनबी यूं गोया होंगे, ए अजीज, शुक्र उस खुदा का जिसने तेरी हिफाजत की, और फिर उसे उसके बाप तक पहुंचा देंगे। अलबकान दर्जी ने उमर की हैरत अंगेज कहानी सुनी। उसे उमर की किस्मत पर रश्क आया कि वो एक बादशाह का बेटा है, जो दर हकीकत अब अपने बादशाह बाप से मिलने जा रहा है। फिर उसी रश्क की जगह हसद ने ले ली। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये उमर तो एक बादशाह की औलाद है और मैं, जो झूठ मूठ का शहजादा बना फिरता हूँ, एक मामूली आदमी हूँ। अलबकान अपनी हैसियत और शक्लो सूरत का उस लड़के उमर से मुआजना करने लगा और उसने अंदर ही अंदर ये इतराफ़ कर लिया कि उमर एक इंतहाई हसीन और जमील नौजवान है। उसकी आंखें रोशन और चमकदार हैं, उसकी नाक सतवां है, रंगो रूप खूब खिला हुआ है। देखने ही से लगता है कि उसका ताल्लुक किसी ऊंचे खानदान से है। उमर ने अपने दिल में ये इतराफ़ तो कर लिया, मगर उसके दिमाग में एक ख्याल हलचल मचाने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना वो किसी तरकीब से खुद उमर की जगह ले ले, क्योंकि ना बचपन से उसने अपने बाप को देखा है और ना ही उसके बाप ने उसे। दिन भर वो यही सोचता रहा कि किस तरह उमर की जगह ले ले, और अंदर ही अंदर कुड़ता रहा और दिल में इसी ख्याल की चुभन लिए रात आने पर वो सो रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उमर अभी तक सो रहा था। उसके चेहरे पर गहरी नींद का सुकून है और उसकी आंखों में शायद अपनी खुशनसीबी के दिनों का ख्वाब समाया हुआ है। वो खंजर जो उमर को उसके मुंह बोले चाचा ने दिया था, उमर की कमर से बंधा हुआ है। अलबकान ने धीरे से वो खंजर निकाल लिया, उसकी धार पर एक नजर डाली, फिर सोए हुए उमर के सीने की तरफ देखा। उमर को कत्ल करने का ख्याल आते ही दर्जी अलबकान सर से पैर तक कांप गया और फिर उसने जल्दी से खंजर छुपा लिया और उसकी जान लेने के बजाय लपक कर उसके घोड़े पर सवार हो गया। फिर एक एड़ लगाई और ये जा और वो जा। काफी देर बाद जब उमर की आंख खुली और उसने अलबकान को गायब पाया तो उसे मालूम हो गया कि अलबकान ने उसे धोखा दे दिया है और उसकी जमा पूंजी पर हाथ साफ किया है और अब खुदा जाने कहां रफो चक्कर हो गया है। ये माह रमजानुल मुबारक का पहला दिन था। अभी अल शराजा के मकाम तक पहुंचने के लिए अलबकान के पास 4 दिन की मोहलत बाकी थी। अगर वो तेजी से जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन इस सफर के लिए दरकार होंगे। उसे डर था कि कहीं उमर उसका पीछा न कर रहा हो, इसलिए उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। अगले रोज उस वक्त जब बस्ती में शाम उतर रही थी, अलबकान अल शराजा पहुंच गया। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर उसने सामने मैदान पर नजर डाली। उसका दिल धक धक कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसके ज़मीर ने मुलामत की, फिर उसने सोचा कि वो शहजादा बनने की किस्मत साथ लाया है। इस ख्याल ने उसके ज़मीर को थपक कर सुला दिया। अब वो जिस इलाके से गुजर रहा था वो वीरान और गैर आबाद था। खाने पीने का कुछ सामान उसके पास था, नहीं तो भूखों मर जाता। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। वो बुरी तरह थक चुका था, फिर रात भी अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने खजूर के एक दरख्त के नीचे अपना घोड़ा रोका, फर्श पर जैन बिछाई और चुपचाप दराज हो गया। जूं तू रात गुजर गई,
صبح हुई, फिर धूप में तेजी आने लगी। दोपहर के करीब अलबकान ने देखा कि दूर कुछ घोड़े और ऊंट अल शराजा की सिमत बड़े आ रहे हैं। टीले के पास पहुंचकर ये काफिला रुक गया। गुलामों ने खेमा इस्तादा किए और जानवरों के आगे चारा डाल दिया। इस काफिले की तादाद को ये देखकर अंदाजा होता था कि ये काफिला या तो किसी मालदार शख्स का है या किसी नवाब का। अलबकान को यकीन हो चुका कि ये काफिला उसी से मुलाकात के लिए यहाँ तक पहुँचा है, तो क्या इसे खुद उस काफिले वालों तक जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो जिस नौजवान के मुंतजिर हैं वो खुद उनसे हम कलाम है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसके दिमाग ने समझाया, ए अजीज, बेसब्री अच्छी बात नहीं, ज़ब्र से काम ले, सब्र से काम ले, अल्लाह का नाम ले और देख आगे क्या होता है। अलबकान ने वो दिन उसी तरह खजूर के नीचे गुजारा। काफिले वाले उससे काफ़ी फासले पर थे और इतनी दूर से शायद उसे नहीं देख सकते थे। अगले दिन माह रमज़ान का चौथा दिन था, शायद अलबकान की ज़िंदगी का सबसे खुश नसीब दिन। वो दिन जब वो एक मामूली दर्जी के बजाय एक सचमुच का शहजादा बन जाएगा। अलबकान ने अच्छी तरह मुंह हाथ धोया, पोशाक पर जमी हुई गर्द झाड़ी, घोड़े पर सवार हुआ और काफिले वालों की सिमत चल पड़ा। एक लम्हे के लिए फिर उसे इस ख्याल ने सताया कि उसने एक शर्मनाक हरकत की है, एक मासूम अजनबी को दगा और धोखा दिया है। मगर उसने इस ख्याल को झटक दिया और सोचा, अब बात ऐसी मंजिल तक पहुंच गई है कि जहां से वापसी का तसव्वुर बेकार है। जो होना था हो चुका, पछताना लाहासिल है। अलबकान टीले के करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा, उमर का खंजर हाथ में लिया और काफिले वालों की जानिब कदम बढ़ाए। वो तादाद में 6 थे और उनके बीचों बीच एक बूढ़ा था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और जिस्म पर कीमती लिबास, रूबदार चेहरा, कुशादा पेशानी। बूढ़े के पहलू में एक बेशकीमत कश्मीरी शाल पड़ी थी और पास ही जरो जवाहर से आरास्ता पगड़ी धरी थी। अलबकान उसके करीब पहुंच गया, दो जानू होकर खंजर बूढ़े की तरफ बढ़ाया और बोला, मैं वो हूं जिसके तुम मुंतजिर हो। बूढ़े ने जवाब दिया, ए अजीज, शुक्र है उस खुदा का जिसने तेरी हिफाजत की। ये कहते कहते उसका गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए। फिर रोहानसी आवाज में बोला, ए उमर, ए फरजंद, आ और अपने बाप के सीने से लग जा। दर्जी शहजादा ये सुनकर खुश भी हुआ और अफसोस भी हुआ। उसे खुशी इस बात की कि उसका बरसों का ख्वाब पूरा हुआ और अफसोस इस पर किया कि ये ख्वाब उसका एक शर्मनाक फरेब के बाद पूरा हुआ। अभी वो इसी कैफियत में था कि अचानक उसका दिल बैठ गया और आंखों में डर समा गया। बूढ़े के सीने से अलग होते ही उसने देखा कि एक घुड़सवार गजबनाक अंदाज में टीले की सिमत से भागा चला आ रहा है। उसने अपने घुटने घोड़े के पहलू में गड़ाए और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अलबकान को समझने में देर नहीं लगी कि ये घोड़ा वही है जो उसने खरीदा था और जिसे वो उमर के घोड़े के बदले छोड़ाया था, और वो घुड़सवार वो उमर है। अलबकान की हालत खराब होने लगी। बड़े जतन के बाद उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि कुछ भी हो, अब तो इस सूरत हाल से निपटना ही पड़ेगा। टीले के करीब पहुंचकर उमर एक छलावे की सूरत में घोड़े की पीठ से उतरा। गुस्सीली नजरों से अलबकान की तरफ देखा और घुड़क कर बोला, ए मलून लानती, रुक जा, अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये कहकर वो बूढ़े से मुखातिब हुआ, ए बुजुर्ग, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें धोखा दिया गया है? उमर मैं हूँ, वो हूँ जिसके तुम मुंतजिर हो, और ये शख्स मक्कार और अयार है, झूठा है। बूढ़ा हैरतज़दा होकर कभी अलबकान की सूरत देखता, कभी उमर का मुंह देखता। अलबकान ने चंद लम्हों के बाद खुद को संभालते हुए मुअद्दब होकर कहा, ए अब्बाजान, इस झूठे की बातों में ना आना, ये खुद मक्कार और फरेबी है। उमर ये नहीं बल्कि मैं हूँ। इस नाबकार का नाम अलबकान है और ये सिकंदरिया के एक दर्जी की दुकान पर काम करता है। इसका दिमाग चल गया है, सो इस पर गुस्से की जगह रहम आता है। उमर की ये बातें सुनकर अलबकान अपने आप में न रहा। गालियां बकता उमर अलबकान पर टूट पड़ा। काफिले वालों ने बाहजार दिक्कत उसे अलग किया और उसके हाथ मजबूती से पकड़ लिए। बूढ़े ने अलबकान दर्जी की जानिब देखते हुए कहा, ए फरजंद, तुम सच कहते हो, इसका दिमाग चल गया है। ये निशानी यानी खंजर हमने तुम्हारे हाथों में देखा है, इसलिए हमें यकीन है कि तुम सच्चे हो। इसके बाद बूढ़े ने अपने मुलाजिमों से कहा, इस पागल नौजवान यानी वही जो असली शहजादा था, उसके हाथ पैर बांधकर इसे ऊंट के कजावे में बिठा दो, इसका दिमाग चल गया है। उमर अब गुस्से के बजाय गिरिया करने लगा। गुलगीर आवाज में बोला, मेरा दिल कहता है कि आप मेरे वालिद हैं और मैं ही आपका बेटा हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उमर हूँ। आप मेरी बात सुन लें, फिर कोई फैसला करें। ये आदमी झूठा है। बूढ़े ने कहा, अफसोस, ऐसा खूबरू नौजवान मगर दिमाग चल जाने से बहकी बहकी बातें कर रहा है। बूढ़ा अपने हकीकी बेटे को पहचान न सका और एक बार फिर बूढ़ा अलबकान दर्जी से बगलगीर हुआ और सब के सब आगे सफर पर चल दिए।
खूबसूरत और आस्था और सेहतमंद घोड़ों पर सवार ये काफिला घर की जानिब रवाना हुआ। ऊँटों पर सामान लदा हुआ था और एक कजावे में बेचारा उमर उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे। ये तो जाहिर था कि बूढ़ा अलबकान की बात को सच मान बैठा था और उसने अलबकान को पसंद भी किया था, क्योंकि बार बार वो मोहब्बत अमेज नजरों से अलबकान की तरफ देखता और उसे बेटा बेटा कहते ना थकता। रास्ते में बूढ़े ने अलबकान को इतनी तवील जुदाई के असबाब बताए। उसने कहा कि उसका नाम सऊद है और वो निशाबिया जगह का सुल्तान है। बहुत दिनों तक वो औलाद की मुसरत से महरूम रहा। फिर बड़ी दुआओं के बाद उसके घर में एक बेटे की वलायत हुई। उसका नाम उमर तजवीज़ हुआ। जब नजूमियों से उस बच्चे का जायचा बनवाया गया तो नजूमियों ने डरते डरते कहा कि 22 बरस की उम्र से पहले अगर ये बच्चा अपने बाप ही के पास रहेगा तो एक दुश्मन के हाथों मारा जाएगा। ये सुनकर सुल्तान सऊद का दिल कांप उठा और सीने पर पत्थर रखकर उसने अपने बेटे को अपने एक दोस्त नवाब के पास भेज दिया और 22 बरस तक वहीं इसकी परवरिश होती रही। निशाबिया पहुंचने पर उस काफले का पुरजोश खैर मकदम इस्तकबाल किया गया। वहां की रियाया को पहले ही से सारा किस्सा मालूम था और वह अपने वली अहद सल्तनत शहजादा उमर को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। आवाम और ख्वास सड़कों पर उमड़ आए। सारा शहर जगमगा रहा था। गलियां और बाजार सब बारौनक और आरास्ता। जगह जगह फूलों से सजे फाटक बनाए गए। मुंडेरों पर चरागां किया गया और हर मकान के दरीचों पर कीमती रंग बिरंगे कालीन आवेजा थे। शहर तो शहर, गांव के बाशिंदे भी अपने वली अहद सल्तनत के खैर मकदम की खातिर लंबी मुसाफतें करके आए थे। हर तरफ मेले का समा था। ढोल ताशे बज रहे थे। कहीं नटों का तमाशा, कहीं बहरूपियों के स्वांग, कहीं कबाब, शीर माल और बाकर खानी की खुशबुएं, कहीं हलवा पूरी की सौंधी सौंधी महक। देगें खनक रही थी। सक्के कटोरे बजा बजा कर मशकें संभाले प्यासों को पानी पिला रहे थे। जगह जगह दरबार की जानिब से मिठाइयों के दूने तकसीम किए जा रहे थे। हर तरफ चहचहे थे और कह गए। लड़कियां सजी धजी शहजादे को देखने के लिए बेकरार। लुच्चे लफंगे मौका पाते ही छेड़खानी को तैयार। सब खुश थे और एक आवाज होकर नारे लगाते थे, शहजादा उमर जिंदाबाद। अलबकान को ये मंजर देखकर झुरझुरी सी आ गई। रगों पे में एक नशा सा दौड़ गया। वो बड़ी शाहाना तमकनत के साथ अपनी रियाया की जानिब से फूल और हार कबूल करता रहा और उन्हें खुश करने के लिए एक दो हार जरा जरा से वक्फे के बाद किसी कम सिन लड़के या लड़की की जानिब उछाल देता। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। उधर वो असली शहजादा बेचारा कजावे में धंसा हुआ अपनी किस्मत पर दिल ही दिल में आंसू बहा रहा था। ये सारा जश्न दरहकीकत उसी के लिए था, मगर सब इस बात से बेखबर थे कि असली शहजादा और वली अहद सल्तनत वो मकार नहीं जो लोगों की सलामियां और तोहफे कबूल कर रहा है, बल्कि एक बदनसीब कैदी है जो ऊंट के कजावे में छुपा ये सारा शोर शराबा सुन रहा है और गुस्से और रंज से भुन रहा है। आखिरकार जुलूस राजधानी पहुंच गया। यहाँ तो जश्न का समा और भी निराला था। हर तरफ कह के महल के दरबार हाल में खैर मकदम की तैयारियां की गई थी। तमाम का तमाम फर्श खुश रंग और दबेज कालीनों से ढका हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें, आवेज़ां, झाड़ और फानूस से सारा हाल बुक्का नूर। चांदी, सोने के तारों और मोती की झालरों से सारी फिजा जगमग। मंजर ऐसा दिलरुबा के आंखें ठहरना मुहाल। शाम होते ही सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए गए। रात पर दिन का गुमा होने लगा। मलका मौज़मा ख्वासों में घिरी एक जरी तख्त पर रोब से बैठी थी। उनके सर पर 4 उमरा ने एक रेशमी चादर तान रखी थी और एक खादमा मोर छल रही थी। मलका को अपने जी वकार शौहर और अपने बेटे का इंतजार था। उन्होंने जिस रोज़ बेटे को जन्म दिया था उसी दिन उनसे जुदा कर दिया गया था। कभी कभार ख्वाब में एक मोहनी सी सूरत उन्होंने देखी थी और उसी को अपना बेटा जाना था। ख्वाब में देखी सूरत आंखों में ऐसी रच बस गई कि हजारों के मजमा में उसे पहचान सकती थी। उन्होंने जुलूस की आमद का शोर सुना और मुस्कुराई। उधर महल के अहाते में अनार फुलझड़ियां छूटने लगीं। पटाखे दागे, संगे मरमर की राहदारी में कदमों की आवाज़ें गूंजी। हाल के दरवाजे खोल दिए गए। मुहाफिजों के दस्ते ने फर्श पर दोजानू होकर मुबारक सलामत की सदाएं बुलंद की। फिर हर तरफ से यही आवाज़ें आने लगीं। सुल्तान का चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने एक हाथ में अपने फर्जंद का हाथ थाम रखा था। मलका के करीब पहुंचकर बोले, ये लीजिए आपका बेटा आपके हजूर में है। ये कहते कहते आंखें भर आईं और आवाज़ रोहान सी हो गई। मलका ने चौंक कर नौजवान की तरफ देखा। एक पल को पलकें झपकाईं और झट से बोली, ये तो मेरे बेटे की सूरत नहीं,
اس کی تو کایا ہی کچھ اور ہے۔ ابھی لوگ ملکہ کی اس بات پر حیران پریشان گمسم کھڑے تھے کہ اچانک ہال کے ایک دروازے سے عمر اندر گھسا۔ وہ اپنے محافظ سپاہیوں کے حلقے سے کسی طرح بھاگ نکلا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سلطان کے قدموں میں ڈال دیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ پھر یوں گویا ہوا کہ اے میرے والد بزرگوار، میری جان لے لیجئے مگر ایسی کٹھور سزا نہ دیجئے۔ میں کب تک یوں ہی چپ رہوں، کب تک یہ ذلت برداشت کروں؟ لوگ بنچکے ہو کر اس کے گرد سمٹ آئے۔ محافظ دوڑے کہ اسے پکڑ لیں۔ سلطان نے اونچی آواز سے کہا، بکو مت، میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو، وہی میرا بیٹا ہے جس پر میری نکاح ٹکی ہے، میں تمہیں قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس مکار کو گرفتار کر لیا جائے اور چلا کر بولا، یہاں میرا لفظ قانون ہے، ملکہ کی بات پر نہ جاؤ، وہ بہت ضعیف الاعتقاد ہیں اور خواب کی بات پر ایمان لا رہی ہیں۔ میرا بیٹا وہی ہے جو بیٹے ہونے کا ثبوت یعنی وہ نشانی والا خنجر لے کر مجھ تک پہنچا ہے۔ عمر نے کہا، اے بزرگ، وہ آپ کا بیٹا نہیں، اس نے مجھ غریب کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کو بھی۔ عمر نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس پر بھی سلطان کا دل نہ پسیجا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے جایا جائے اور قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ البکان کو ساتھ لے کر حال سے نکلا۔ ملکہ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا البکان نہیں بلکہ وہ غریب عمر ہے۔ خواب میں جو صورت انہیں نظر آئی تھی، عمر عین اسی کی مورت تھا۔ وہ دیر تک بیچاری غمزدہ رہی، آہیں بھرتی رہیں۔ جب دل کو قرار آیا تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اپنے ضدی شوہر کو کس طرح قائل کریں۔ عورت ذات بیچاری ممتا کی ماری اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ سلطان کے ساتھ جو ملازم ان کے بیٹے سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور جن کے سامنے البکان نے وہ خنجر سلطان کے سامنے پیش کر کے اپنے بیٹا ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا، ملکہ نے انہیں بلوایا اور ان سے ساری تفصیل پوچھی۔ ملازموں نے سارا حال کہہ سنایا کہ کس طرح سلطان نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور وہاں عمر نے آ کر اچانک کس طرح البکان کو پل بھر میں حیرانی میں ڈال دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ خنجر کا مالک البکان نہیں بلکہ خود وہ عمر ہے۔ البکان کے بارے میں عمر نے یہ کہا تھا کہ وہ تو ایک نیم دیوانہ درزی ہے۔ ملکہ کے ساتھ اس وقت ان کا مقرب خاص مالک شاہ بھی موجود تھا۔ مالک شاہ بہت دانا مشہور تھا اور ذرا سی دیر میں بات کی تہ تک پہنچنے میں کمال رکھتا تھا۔ اس نے جب یہ سارا حال سنا تو ملکہ سے کہا، اب آپ اپنے دل کو سنبھال لیں، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، خدا نے چاہا تو اصل حقیقت سامنے آ جائے گی، نیکی کی فتح ہوگی اور بدی اپنی کرنی کا پھل پائے گی۔ پھر اس نے ملکہ کے کان میں چپکے کوئی بات کہی اور باہر نکل گیا۔ ملکہ بھی بہت سمجھدار عورت تھی، انہیں یقین تھا کہ یہ ترکیب کارگر ہوگی، سو اب انہوں نے اپنا رویہ بدلا، رونا دھونا چھوڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ گئی اور ایسا سوانگ بھرا جیسے انہیں اپنے شوہر کی رائے سے اتفاق ہو اور وہ البکان ہی کو اپنا بیٹا سمجھ رہی ہوں۔ سلطان کو اس بات پر خوشی ہوئی۔ ایک روز ملکہ نے سلطان سے لگاوٹ کی باتیں کرتے کرتے اچانک کہا، کیوں نہ اس قصے کو حل کرنے کے لیے عمر اور البکان دونوں کا امتحان کیا جائے؟ سلطان نے پوچھا، کیسا امتحان؟ یہ دیکھا جائے کہ دونوں میں زیادہ ہنرمند کون ہے۔ شہ سواری، تیغ زنی یعنی تلوار تو چلانا تو سبھی جانتے ہیں، میں تو دونوں سے یہ کہوں گی کہ ایک ایک چوغا سی کر دکھائیں اور اس پر گل بوٹے بنائیں۔ سلطان کو یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ بھلا یہ کیا امتحان ہوا، مگر ملکہ کی باتوں میں آ گیا اور دل میں سوچا کہ ملکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ تماشا بھی صحیح۔ ویسے اتنا ضرور کہا کہ بھلا فرزند شاہ سلائی کڑھائی کیا جانے، ظاہر ہے کہ اس امتحان میں وہ ہار جائے گا۔ اس کے بعد سلطان اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہاری ماں چاہتی ہے کہ ایک چوغا تم اس کے لیے سی کر دکھاؤ اور اگر گل بوٹے بنا سکو تو بناؤ اور اپنی ہنر مندی کی داد پاؤ، ہر چند کہ یہ تمہاری شان کے شیان نہیں، پھر بھی ماں کی ضد ہے، پوری کرنی پڑے گی۔ البکان دل ہی دل میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس طرح ملکہ کا دل جیتنے کی ایک بہترین صورت ہاتھ آئی ہے۔ بولا، بس سرو چشم اس حکم کی تعمیل کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ وہ خود درزی تھا ہی۔ البکان اور عمر دونوں کو الگ الگ کمروں میں بٹھا دیا گیا۔ سوئی، دھاگا، کینچی، ریشمی کپڑے کا ایک ایک تھان دونوں کو دے دیا گیا۔ سلطان یہ سوچ کر حیران تھا کہ خدا جانے اس کا بیٹا اس تھان کا کیا حشر کرے گا۔ بہرحال اس کام کو پورا کرنے کے لیے 2 روز کا موقع دونوں کو دیا گیا۔ ملکہ بڑی بے چینی کے ساتھ تیسرے دن کے انتظار میں تھی۔ خدا کر کے تیسرا دن آیا۔ البکان نے بہت شاندار چوغا تیار کیا، بڑے گھمنڈ سے سینہ پھلائے ملکہ کے حضور میں آیا۔ چوغا انہیں دکھایا اور بتایا کہ یہ ہنر سارے کا سارا اسی کا ہے۔ مشاق کاریگر دیکھے گا تو پانی بھرے گا۔ گل بوٹے ایسے بنائے ہیں جیسے چمن سے تازہ آئے ہیں۔
सुल्ताना धीमे से मुस्कुराई और चोगा ले लिया। फिर उमर को बुलवाया गया। उमर आया और रेशमी थान बगैर सिले जूं का तूं अपने साथ लाया। थान और कैंची फर्श पर दे मारी। नागवारी से बोला, मैं छलांगे लगा सकता हूँ, खंदकें पार कर सकता हूँ, तीर तलवार चला सकता हूँ, घोड़े की सवारी का कमाल दिखा सकता हूँ, मगर ए बुजुर्गवार, मैंने सुई धागा इससे पहले कभी छुआ भी नहीं। नवाब ने मुझे ये तरबियत देने का सोचा ही नहीं था। सो ये कपड़ा और सुई धागा वापस करता हूँ। मलिका चीख पड़ी, दौड़कर उमर से लिपट गईं और गिरिया करते हुए बोली, बेशक तुम ही मेरे बेटे हो। इतना कहकर मलिका ने सुल्तान की जानिब देखा और बोली, सरताज, गुस्ताखी माफ हो। मैंने तमाशा इसीलिए करवाया था कि हकीकत का हाल खुले, सो खुल गया। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में शहजादा कौन है और दर्जी कौन? आपके मुंह बोले बेटे ने जो चोगा तैयार किया, बिलाशुबा वो बेमिसाल है। जरा उससे पूछे तो सही कि उसने ये हुनर कहाँ से सीखा। इस बात पर सुल्तान दम भर के लिए सोच में पड़ गया। एक नज़र मलका पर डाली, एक अलबकान पर। अलबकान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। चिल्लाकर बोला, ए बुजुर्गवार, ये मेरी तौहीन है। आखिर ऐसा किस लिए है? मैं जो काम सलीके से करता हूँ, वालिदा से कहिए कि मुझे यूं जलील ना करें। सुल्तान ने चंद लम्हे ठहर के कहा, बस इतना सा सबूत काफ़ी नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि आप बिला वजह शक का शिकार हैं। खैर, मैं इससे भी बेहतर एक और तरीके से इम्तिहान लूंगा। इतना कहकर सुल्तान कमरे से निकल गया। एक घोड़ा मंगवाया, लपक कर उसकी पीठ पर जा बैठा और एड़ी लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। सुल्तान का रुख एक जंगल की तरफ था, जहां एक परी अदल जायदा रहती थी। ये बात मशहूर थी कि परी अदल जायदा आड़े वक्तों में सबके काम आती है, बिगड़ी बनाती है। अब से आगे भी सुल्तान के बुजुर्गों ने उससे कुछ मामलों में मदद चाही थी। जंगल शहर से बहुत दूर न था। थोड़ी ही देर में सुल्तान मंजिल मकसूद पर जा पहुंचा। जंगल के दरमियान में एक साफ शफाफ घर देखकर ठहर गया। एक पेड़ के तने से घोड़े की लगाम बांधी और पुकार कर बोला, ए बुरे वक्तों में काम आने वाली परी, तुम कहाँ हो? जहां हो मेरी आवाज सुनकर इधर आओ, मदद का हाथ बढ़ाओ। अभी वो चुप ही हुआ था कि एक दरख्त की ओट से सफेद बुराक लिबास पहने, चेहरे पर नकाब डाले परी नमूदार हुई। नरमी से बोली, ए सुल्तान, तेरी सदा के जवाब में मैं तेरे सामने हूँ, बोल क्या चाहता है? सुल्तान ने अपनी बिपता कह सुनाई। परी ने 2 तोक सुल्तान के हवाले किए और कहा, ले, ये दोनों तोक उनके सामने ले जा। इनमें जो भी तेरा बेटा होगा सही तोक का इंतखाब करेगा। तोक गले में डाले जाने वाले एक अलामती पट्टे को कहते हैं। बस इतना कहकर परी लपक झपक कर दरख्तों की ओट में छुप गई। सुल्तान ने गौर से दोनों तोक देखे। दोनों बेशकीमती हाथी दांत के बने हुए थे। उन पर चांदी सोने का काम था, मोती जड़े हुए थे। एक पर ये अल्फाज लिखे थे, इज्जत और वकार। दूसरे पर ये अल्फाज लिखे थे, खुशी और दौलत। सुल्तान की समझ में कुछ न आया कि कौन सा तोक बेहतर है। परी गायब हो चुकी थी, इसीलिए मजीद कुछ पूछने की सूरत न थी। नाचार दोनों तोक साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर महल की सिमत चल पड़ा। महल वापस आने के बाद सुल्तान ने मलिका को तलब किया। आप बीती सुनाई। वो तोक मलिका को दिखाए। मलिका का जी अंदर ही अंदर खुश हो उठा। उन्हें यकीन था कि अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। सुल्तान के हुक्म से इम्तिहान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तख्त शाही के सामने 2 मेज़ों पर दोनों तोक रख दिए गए। सुल्तान तख्त पर जा बैठा। अमीर सफ ब सफ अंदर आए और अपनी मुकर्ररा जगहों पर बैठ गए। पहले अलबकान को अंदर बुलाया गया। वो बड़े करोफर के साथ हाल में दाखिल हुआ। सबकी निगाहें एक साथ उसकी जानिब उठी। वो बड़े अंदाज से चलता हुआ तख्त शाही के करीब पहुंचा और बोला, हजूर बुजुर्गवार, आपने अपने बेटे को इस वक्त किस लिए तलब किया है? सुल्तान ने उठकर उसे गले से लगाया, फिर बताया कि ए बेटे, तुम्हारे बारे में तरह तरह की बदगुमानियां हैं कि तुम मेरे हकीकी बेटे नहीं हो। खुद तुम्हारी वालदा, तुम्हारी माँ भी शक में पड़ी हैं। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मगर परी की बात और है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा उनसे मदद पाई है। परी ने 2 तोक दिए हैं, इनमें से एक चुन लो। बस यही इम्तिहान है। मेरी दुआ है कि तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरो और शक का मुंह काला हो। अलबकान ने एक एक करके दोनों तोक देखे। पल भर को किसी सोच में खोया रहा, फिर यूं बोला, ए बाप, मैं आपका बेटा हूं। आपका हुक्म बजा लाना मेरा ईमान है। आपके हुक्म की तामील में एक तोक चुने लेता हूं। ये कहकर उसने एक तोक उठा लिया जिस पर खुशी और दौलत के अल्फाज लिखे थे। सुल्तान ने वो तोक गौर से देखा, फिर उसे उसी जगह पर रख दिया और उमर को तलब किया। उमर आया, बेचारा गमगीन और परेशान, आंखों में दर्द भरा हुआ, चेहरा बेख्वाबी के बायस सता हुआ।
اہل دربار کا دل اسے دیکھ کر پسیج گیا۔ عمر نے تخت شاہی کو بوسہ دیا، پھر پوچھا کہ اس بد نصیب کو کس لیے بلایا ہے؟ سلطان نے پھر وہی بات دہرائی کہ جا اور ایک توق چن لے۔ عمر آگے بڑھا، ایک نظر دونوں پر ڈالی اور وہ توق جس پر عزت اور وقار کے الفاظ لکھے تھے اسے اٹھا لیا۔ دکھ بھرے لہجے میں بولا، اے بزرگوار، مجھے زندگی کا جو تجربہ ملا ہے اس سے یہ بھید مجھ پر کھلا ہے کہ مسرت اور دولت کے لیے آدمی ایمان بیچ دیتا ہے، سو میں نے اس کی طرف سے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں۔ البتہ عزت اور وقار نہ چرایا جا سکتا ہے نہ چھینا جا سکتا ہے، سو میں نے اسی کو چنا ہے۔ اب سلطان نے البکان کو حکم دیا کہ وہ میز کے قریب جا کر اس توق پر ہاتھ رکھے جس کا اس نے انتخاب کیا ہے۔ پھر اس نے خادموں کو حکم دیا کہ زمزم سے بھری سراہی لے آئیں۔ خادموں نے تعمیل کی۔ سلطان نے مشرق کی طرف رخ کر کے دو زانوں بیٹھ کر یہ دعا مانگی، اے خداؤں کے خدا، تو سب سے بڑا ہے اور ہمارے ناموس کا محافظ ہے۔ ان دونوں میں جو بھی سچا ہے اسے اپنی امان میں رکھ اور بتا کہ کون سچا ہے۔ تو ہی سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں اس دعا کے بعد سلطان پھر اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ سارے دربار پر ایک سناٹا طاری تھا، سب کا دل بھاری تھا۔ تمام اہل دربار اس سوچ میں تھے کہ اب آگے اور کیا ہونے والا ہے۔ سلطان ایک ٹک ان دونوں توقوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک کھٹکا سا ہوا اور ایک توق کا ڈھکنا آپ ہی آپ کھلا۔ اس ڈھکنے سے ایک شبیہ نکلی جس پر تاج شاہی کا عکس تھا۔ یہ توق عمر نے چنا تھا۔ چند لمحوں بعد البکان نے جس توق کا انتخاب کیا تھا اس کا ڈھکنا کھلا، اس میں سے ایک سوئی اور دھاگا نکلا۔ سلطان نے حکم دیا کہ وہ شبیہ لائی جائے۔ سلطان نے اس پر ہاتھ رکھا اور رفتہ رفتہ تاج کا عکس ایک سچ مچ کے تاج میں منتقل ہو گیا۔ پھر اس کا حجم بڑھنا شروع ہوا اور ذرا دیر بعد وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آسانی سے سر پر رکھا جا سکے۔ اہل دربار نے مبارک سلامت کی صدائیں بلند کیں۔ سردار نے وہ تاج اپنے ہاتھوں سے عمر کے سر پر رکھ دیا۔ ملکہ معظمہ فوراً سر بسجود ہو گئیں۔ شکر اس خدا کا ادا کیا جو ہر بھید کا جاننے والا ہے، جس کا رنگ ڈھنگ سب سے نرالا ہے اور جس کے انصاف کی وجہ سے دنیا میں سچ کا بول بالا ہے۔ عمر نے آگے بڑھ کر سلطان کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی والدہ کے سینے سے جا لگا۔ اہل دربار خوش ہو اٹھے کہ وہی ہوا جس کے وہ دل سے آرزو مند تھے۔ البکان کھسیایا اور روحان سا کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے اب اپنے قریب آنے کا حکم دیا، سوئی اور دھاگا اس کے حوالے کیا اور کہا، لے، جو تیرا تھا تیرے پاس پہنچ گیا۔ اے ناہنجار، تو نے جو فریب رچایا تھا اس کی سزا تو یہی ہے کہ تیری گردن اتار دی جائے، مگر میں آج اپنے اصلی بیٹے کو پانے کی خوشی میں تیری جان بخشتا ہوں۔ اب میرا حکم یہ ہے کہ ابھی اسی وقت دم دبا کر یہاں سے کھسک جا، کہیں بھاگ جا، ایسا نہ ہو کہ میرا جلال رحم پر غالب آ جائے اور تو اپنے کیے کی سزا پائے۔ مارے شرم کے البکان کا برا حال ہو گیا، جینا وبال ہو گیا۔ دھڑم سے شہزادے کے قدموں میں جا گرا، پینوں کو بوسہ دیا، گریہ کیا اور بولا، اے لائق شہزادے، میری خطا کو معاف کر۔ شہزادے نے اسے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر اٹھایا، گلے سے لگایا اور کہا، جا، خدا تجھے معاف کرے۔ آئندہ کے لیے توبہ کر اور یہ جان لے کہ دوستی کے نام پر وفاداری، دشمنوں کے تئیں رواداری ہی مردوں کی پہچان ہے۔ یہی میرا ایمان ہے، میں تیری خطا معاف کرتا ہوں۔ سلطان یہ سن کر اشک بار ہوا، اپنی غلطیوں کو سوچ کر بے قرار ہوا اور بولا، اے بیٹے، تو نے بڑے دکھ اٹھائے، مگر سچ مچ تجھ میں رئیسوں کی سی شان ہے۔ شرافت کی یہی پہچان ہے کہ تو اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگاتا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان شہزادے کے سینے سے جا لگا، خوب رویا۔ امیروں، وزیروں اور مصاحبوں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا، شہزادے کی عمر دراز ہو۔ سب خوشی سے چلانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجمع کا رنگ بدل گیا۔ اسی بیچ البکان چپکے سے وہ توق بغل میں دبائے باہر نکل گیا۔ وہ سب کی نظریں بچا کر سلطان کے استبل میں گھسا، ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور اسکندریہ کی سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ اب اسے وہ دن جب اس نے شہزادے کا سوانگ بھر رکھا تھا خواب جیسے لگنے لگے۔ بس ایک قیمتی توق اس کے پاس تھا جس پر ہیرے جواہرات ٹنگے ہوئے تھے۔ اسکندریہ پہنچ کر وہ سیدھا اپنے پرانے مالک اپنے استاد درزی کے پاس پہنچا۔ گھوڑے سے جھٹ پٹ اتر کر دکان میں داخل ہوا۔ پہلے تو بوڑھے درزی نے اسے پہچانا ہی نہیں اور اسے کوئی نیا گاہک سمجھ کر بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، شربت سے تواضع کی، مگر چند لمحے بعد اس نے اسے پہچان لیا اور دکان کے دوسرے ملازموں کو آواز دی۔ سب لپکے ہوئے آئے۔ البکان کو دیکھتے ہی سب نے آپس میں کچھ بات کی، پھر اچانک ایک ساتھ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے۔
बुरी तरह उसकी मुरम्मत की, उसके बाजुओं में सुइयां चुभो दी, कैंची से उसके बाल जहां तहां तराश दिए, खूब लातें घोंसे मारे, यहां तक कि बेचारा बेहोश होकर पुराने कपड़ों के एक ढेर पर गिर पड़ा। दोबारा होश में आया तो उस्ताद ने बतलाया कि यह सब चोरी की सजा है। अलबुकान एक उम्दा जोड़ा लेकर वहां से भागा था, सो आज उसकी सजा पाई, अपनी रही सही इज्जत भी गंवाई। अलबुकान ने फिर बात बनाई, बोला आज उस चोरी का मुआवजा अदा करने की खातिर ही तो आया था। इस पर उस्ताद दर्जी और उसके कारीगर एक बार फिर उस पर टूट पड़े और उसे अच्छी तरह मार पीट कर दुकान से बाहर फेंक दिया। बोले, ए नाहिंजार, चोरी करके तूने हम सबको जलील किया, अब पछतावे से क्या होता है, दफा हो जा जहां से। नाचार अलबुकान दोबारा घोड़े पर सवार हुआ, एक सराय की राह ली, वहां बिस्तर पर गिरकर अपने हालत जार पर रोने लगा। दिल ही दिल में अहद किया कि अब आगे कभी किसी दूसरे की दौलत या झूठी इज्जत की खातिर यूं रुसवा ना होगा। ये सोचता सोचता वो सो गया। दूसरी सुबह आंख खुली तो पिछली शाम की पिटाई याद आई। उसने फिर ये बात दिल में दोहराई कि अब इज्जत की रोजी कमाएगा और रूखी सूखी खाएगा। उसने अपना तोक ऊंचे दामों में एक जौहरी के हाथ बेच दिया, एक मकान खरीदा और एक दर्जी की दुकान खोल ली। ये सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी तो दुकान पर स्याह रोशन हरूफ में एक बोर्ड लगवाया। उस बोर्ड पर लिखा था, अलबुकान दर्जी की दुकान। उसी तोक से जो सुई और धागा बरामद हुआ था, उससे फटे हुए कपड़ों की मुरम्मत की। पिटाई की वजह से उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे। इतने में किसी ने उसे बाहर से पुकारा। वो काम छोड़कर बाहर चला गया। जरा देर बाद वो वापस आया है तो क्या देखता है कि तोक से निकली हुई वो सुई आप ही आप कपड़े पर चलती जा रही है और ऐसी उम्दा सिलाई करती है कि अच्छे से अच्छे कारीगर के भी होश उड़ जाएं। ये तो हुआ उस सुई का हाल। दूसरी तरफ वो धागा भी अजीब था कि किसी तरह खत्म होने में ही ना आता था। अलबुकान ने घंटों उस धागे को इस्तेमाल किया मगर वो खत्म ना हुआ। होते होते इस बात का चर्चा बाहर होने लगा। लोगों ने जब सुना कि अलबुकान के पास एक जादुई सुई है जो उम्दा से उम्दा सिलाई करती है तो जौक दर जौक उसकी दुकान पर जमा होने लगे। उसे धड़ाधड़ काम मिलने लगा। बहुत जल्द वो उस इलाके का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। वो कपड़े तराश कर बस एक टांका अपने हाथ से लगाता, बकिया सारा काम सुई खुद करती, यहां तक कि सिलाई मुकम्मल हो जाती। अलबुकान के नाम का सारे सिकंदरिया में डंका बजने लगा। अलबुकान ने कोई कारीगर मुलाजिम नहीं रखा, उसे जरूरत भी क्या थी। लोग तो ये जान गए थे कि अलबुकान की सुई जादू की है और उसकी सिलाई का कोई दूसरा कारीगर मुकाबला नहीं कर सकता। मगर उन्हें यह पता नहीं था कि सुई बगैर हाथ लगाए खुद ब खुद चलती रहती है। अलबुकान ने भी इस राज को राज ही रखा। वो सिलाई का काम अकेले दुकान का दरवाजा बंद करने के बाद करता था। अलबुकान के तौक पर जो लफ्ज गंदा थे यानी मुसरत और दौलत के, वो सच निकले। अलबुकान को खुशी भी मिली और दौलत भी। कभी कभार उसके कानों तक शहजादा उमर की फतवात और नेकियों की खबरें भी पहुंचती तो वो सोचता, जो जिसके लिए था उसे मिल गया। मगर इज्जत और वकार खतरनाक चीजें हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं अब अपने हाल पर खुश हूं।